Hello everyone, welcome to Physiology and Sports Part 6. In this video, we are going to have a look on the effects of exercises on muscular system. As it is written in your book, when we do regular exercises, some permanent changes take place in our muscular system. These changes occur only when exercises are performed daily. If we do not exercise or if we do exercise only once, there will be changes in our muscular system but only for a temporary phase. Following changes in our muscular system can be seen if exercises are done on regular basis. So, जो भी इफ़ेक्ट्स एक्सरसाइजेस के हम डिस्कस करने वाले हैं नीचे, ये सारे वो इफ़ेक्ट्स हैं. इट कॉजेज ओनली व्हेन इट अकर्स ओनली व्हेन you indulge yourself in regular scheduled workout plan. अगर रेगुलर प्लान आपका नहीं है, आप रेगुलर ट्रेनिंग फॉलो नहीं करते, तो ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में नहीं कॉज होंगे. दीज कॉजेज आर नॉट फॉर द वीकेंड वॉरियर्स. आप सैटरडे संडेज वीकेंड्स पे खेलते हो तो ये चेंजेस नहीं होंगे आपकी बॉडी में. सो फर्स्ट change is change in shape and size of muscle. Through regular exercise, the shape and size of muscle is changed. In fact, cells of muscles are enlarged with change in shape and size of the muscle. मसल को यूज़ करते हैं, मसल अडेप्टिव बनते हैं नए वर्कआउट के लिए, नए शेड्यूल के लिए, नए प्रोग्राम के लिए, एंड इट विल कॉज चेंज इन साइज. आपके मसल साइज चेंज होता है. सेकेंड इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज. When we indulge ourselves in exercises programs or even any kind of exercise, what happens? बॉडी की डिमांड बढ़ती है ऑक्सीजन रिच ब्लड की. अब वो ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके मसल्स में तभी फ्लो करेगा जब वहाँ पर ब्लड वेसल्स होगी. सो व्हाट योर बॉडी डज, योर बॉडी फॉर्म न्यू कैपिलरीज सो दैट ब्लड विल फ्लो थ्रू दैम. Okay, so third one is your muscle remain in tone position. What is tone position? Body muscles become stiff, toned, attractive, or somehow it slight steady pulls on the attachments, bone to bone attachments और muscle to bone attachments को वो stiff और straight रखती है, जिससे एक बहुत ही खूबसूरत body posture आता है. You look handsome, women look pretty when they perform regular exercises. Fourth is controls extra fat. What happens when you do regular exercises? Your extra fat burns. As it is written, regular exercises controls the extra fat of the body. Exercises burns the extra calories deposited in the form of fat. Number 5, change in the connective tissue. The connective tissues which connects fiber becomes powerful. These tissue can bear stress for strenuous activities and can be extended up to some degrees. Muscles, connective tissues, there are three things: ligament, tendons and fascia. Ligaments are those which connects bone to bone. Then comes tendon which connects muscle to bone. Then fascia connects muscle to muscle. तो जितने भी कनेक्टिव चीज़ें होती हैं ये स्टिफ हो जाती हैं, स्टर्ड हो जाती हैं, इवन पावरफुल, और ये ज़्यादा स्ट्रेन बेयर कर सकती हैं. 6 is your efficiency in the movement of muscles. The movement of muscles become efficient and smooth. The movement during different activities become attractive. 7. Delays fatigue. Regular exercises delay fatigue. Fatigue is mainly due to formation of carbon dioxide, lactic acid and acid phosphates. The accumulation of CO2, acid phosphate and lactic acid becomes less in an individual who exercise regularly. Hence, fatigue can be delayed if exercises are performed daily. There is a theory called load and adaptation theory. इस थ्योरी में क्या होता है कि हम एक एथलीट के ऊपर लोड प्रोसेस करते हैं. लोड क्या होता है? सपोज़ मैं आपको बोलूँ कि आज आपको यू हैव टू डू 10 मिनट्स रनिंग. आपको 10 मिनट रनिंग करनी है और कल आपको 11 मिनट करनी है. द नेक्स्ट डे 12 मिनट्स. इसे बोलते हैं लोड. हम क्या कर रहे हैं? साइमल्टेनियसली लोड बढ़ा रहे हैं. 11 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट्स, 14 मिनट्स, और हम देख रहे हैं कि क्या वो एथलीट इसको बेयर कर पाता है,
क्या वो 14 मिनट्स भाग पा रहा है? फिर हमने देखा कुछ दिनों के बाद हमने उसको बोला कि 17 मिनट्स भागना है आपको, और जिस दिन उसको 17 मिनट्स भागना था वो थक गया 13 मिनट्स के अंदर ही। मतलब कि वो एथलीट उस लोड को बेयर नहीं कर पाया। फिर हम लोड को कम करते हैं। सो व्हाट हैपेंस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लोड एंड अडेप्टेशन। हम लोड देते हैं और एथलीट को टाइम देते हैं सो दैट ही कैन अडेप्ट, एंड विच डिलेज फटीग. Number 8 is increase in food storage. The food storing capacity is increased when regular exercises are done. This stored food can be utilized immediately wherever it is needed. What happens when we indulge ourselves in regular planned training? Our body knows कि आज हमने ट्रेनिंग करी है, हम कल फिर ट्रेनिंग करने वाले हैं, तो फॉर फ्यूचर हमारी बॉडी क्या कर लेगी, कुछ अमाउंट फूड स्टोर कर लेगी हमारे अपने बॉडी के अंदर, ताकि इन फ्यूचर हम उसको यूज़ कर सकें. नाइन्थ इज़ योर एक्सरसाइज एंड इट्स हेल्थी बेनिफिट्स. Exercise and its health benefits. In our body remain fit and healthy with an increased blood circulation and oxygen intake. Regular exercise give a healthy glowing look and it is natural anti-aging technique. It improves digestion, it helps in strengthening body muscles and the attain good posture. Exercises help us to get good sleep and look good when we wake up. So these are few healthy benefits जो आपकी बॉडी में कॉज होते हैं when you do regular exercises. Number 10 is non-functional fiber become active. As we all know, there are lots of muscle in our body. बहुत सारे मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर और सारे कभी भी हम यूज़ नहीं कर पाते. सो व्हाट हैपेंस, जब भी हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उससे हमारे बॉडी के सारे मसल्स यूज़ होते हैं. लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल. अगर मैं आपको बोलूँ कि यू हैव टू पिक अ वाटर बॉटल, आपको एक पानी की बोतल उठानी है और वो ज़मीन पर गिरी हुई है, आप क्या करोगे? आप नॉर्मल अपनी बॉडी को बेंड करोगे, यू लीन फॉरवर्ड, आप बॉटल को उठाओगे. वहीं इन अदर साइड मैं आपको बोलूँ कि 20 kgs का एक आयरन पीस ज़मीन पे पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, आपको वो उठाना है. क्या वो इजी होगा उठाना जैसे आपने बॉटल को उठा लिया? नहीं होगा. बॉटल को उठाने के लिए आपने क्या करा? आपने बॉडी को बेंड किया, आपने बॉटल को उठा लिया. लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ 20 kgs ऑफ आयरन पीस, आप क्या करोगे? आप अपने घुटने बेंड करोगे, क्योंकि अब आपको सपोर्ट की नीड है. पहले तो आपने सिर्फ हाथों की पावर से उस बॉटल को उठा लिया था, अब आपको फुल बॉडी वर्कआउट, फुल बॉडी एनर्जी, फुल बॉडी स्ट्रेंथ चाहिए. आप पहले अपने घुटनों को बेंड करोगे ताकि आप क्वाड्रिसेप्स मसल और हैमस्ट्रिंग पेयर से हेल्प ले सको. फिर अपनी कमर को बेंड करोगे ताकि आप लोअर बैक और एब्डोमेन से हेल्प ले सको. फिर उसके बाद आप अपने हाथ को नीचे करोगे और हाथ को नीचे करते ही आपके डेल्टॉइड, बाइसेप ब्रेकियाई, ट्राइसेप्स मसल सब एक्ट आ जाएंगे, सब प्ले में आ जाएंगे. उन सारे मसल्स के हेल्प से आप पूरी फोर्स को लगाओगे और उस आयरन पीस को उठाओगे. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू रेगुलर एक्सरसाइजेस. बहुत सारे मसल्स आपके वर्क करने स्टार्ट कर देते हैं. देन कम्स अ बॉडी पोस्चर रिमेन करेक्ट. बॉडी पोस्चर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है. सी व्हाट हैपेंस, आपने देखा होगा कई लोगों के शोल्डर्स बहुत मतलब राउंड शोल्डर्स होते हैं उनके, काफ़ी आगे की तरफ बेंड होते हैं उनके शोल्डर्स, है ना. किसी किसी का जो ट्रंक होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, किसी के पोस्चर ख़राब होता है, किसी के नेक नीचे होती है. जितने भी पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ हैं ये सारे ना मसल स्ट्रेंथनिंग की वजह से आते हैं, जब मसल पावर कम होती है बॉडी में. अब शोल्डर्स को डेल्टॉइड मसल कैरी करता है, लिफ्ट करता है उसको. अगर आपका डेल्टॉइड मसल ही वीक होगा तो शोल्डर्स अपनी पोजीशन पे कभी आ ही नहीं पाएंगे. सेम आपको झुक के चलने की आदत है, वो झुक के आप इसलिए चल रहे हो क्योंकि आपके एब्डोमेन मसल्स ही वीक हैं. आपके एब्डोमेन मसल जब स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपकी बॉडी अपने आप सीधी हो जाएगी. सो दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी to do regular exercises for correct posture. Then at the last, it improves your reaction time. As a result of regular exercises, the speed of nerve impulse increases, which ultimately improves the reaction time. This nerve impulse move very quickly through motor nerves from nervous system to muscles fibers. Owing to this, the reaction time improves.